Hello students and welcome to the second lecture of binomial theorem. In the last class we discussed about the introduction to the binomial theorem and we expand the binomial theorem such that x plus a to the power n or a plus b to the n. Let us just recap. And today we are going to discuss the general term of a binomial expansion of a binomial theorem. Okay, let us start. General term of a binomial theorem. General term of a binomial theorem. It is very simple. Okay, let us take a binomial expansion or let us take a binomial expansion or binomial expansion. Suppose a plus b to the power n. A plus b to the power n. So what would be the first term? A to the power n and b to the power 0. And we know that this is nc0. And then second term is the power of a is reduced to 1 and the power of b is increased to 1. So it will be a to the power n minus 1 and b to the power 1. And this is nc1 obviously. And what would be the third term? It is a to the power reduced to again 1. So n minus 2 and b to the power 2. And this is obviously nc2 and so on, my dear students. And the last term would be ncn, a to the power 0 and b to the power n. So always we studied some properties of binomial expansion. Then one of the properties is the sum of the power of a and b are always equal to n. Okay, last class में x, y, a, p, no problem. I hope you will get understand up it. So the sum of power is always equals to n. देखो ये n है, this is also n. हर केस में the sum of powers of the two variables a and b are equal to 1. Are equal to 1. Got it? Then what is the first term of this binomial expansion? The first term is nc0, a to the power n and b to the power 0. And what would be the second term? Second term is nc1, a to the power n minus 1 and b to the power 1. And what is the third term? The third term would be, this is the third term, it will be nc2, a to the power n minus 2 and b to the power 2. And what would be the fourth term? The fourth term is nc3, a to the power n minus 3 and b raised to the power 3. Okay, similarly just observe a pattern here. And the pattern is the fourth term is c3, nc3. Third term nc2, second term nc1, first term nc0. Okay, so if we are going to find the seventh term, it will be nc6. If you are going to find the 10th term, it will be nc9. If you are going to find out the 20th term of the expansion, it will be nc19. It will be nc19. So, and this is also very a to the power 0, nc0 means b to the power 0. nc1 is b to the power 1. nc2 means b to the power 2. If we are going to find out the suppose seventh term, the seventh term would be, must be, it will be nc6. It is as clear as word. Okay, nc6 and b to the power must be 6. And another property says the power of a and the power of b sum as n. So a to the power must be n minus 6. This is the seventh term, or we can say any term, by the way. So similarly, in this similar fashion, we can say the r plus 1 th term is of expansion a to plus b to the power n is, this is n c just r plus 1 th term and just
1 less than r plus 1 means it will be NCR, and NCR means b to the power r and a to the power n minus r. So this is the r plus 1 th term, or in this denoted term in the terminology we can say this is T1 the first term, T2 the second term, T3 the third term, T4 the fourth term. Similarly we can just remember the beautiful formula, the T r plus 1, hence r plus 1 th term is equal to NCR a to the power n minus r and b to the power r. This is the very important and the beautiful formula. यही फॉर्मूला में बाइनोमियल थ्योरम खत्म हो जाता है. ओके, बस बाकी जितने कॉन्सेप्ट हैं सब इसी फार्मूला के इर्द गिर्द हैं, बट ऑल द बाइनोमियल थ्योरम इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस फार्मूला. सो दिस फार्मूला इज हाईली वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज very important. दिस फार्मूला ऑल द बाइनोमियल थ्योरम का पूरा सेंटर रोल ये प्ले करता है. ठीक है, let us do a question, a simple problem. Let me take a questions. Suppose there is an expansion 2x plus 5y or minus 5y, let us say minus 5y whole to the power 10. Okay, we have to now find the eighth term. Okay, it is as simple as that. We have to it is 2x minus 5y to the power 10, and the number of term in the expansion is 11. There are 11 terms in the expansion of this binomial theorem. Okay, the binomial expansion contains 11 terms. So to find the t8th term, so this is t8. This is t8. So t8 means t7 plus 1. We can write 7 plus 1. So this is, we can write the value of n is 10. So 10c7, 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 and what is the value of a is a? The value of a is 2x to the power 10 minus 7, and the minus 5y to the power how much? 7. So finally it is 10c7. We have to find the value of 10c7. 10c7, so 2x to the power 3 and minus 5y to the power 7. Okay, just calculate it. This is a very important formula, highly important. So now the 10c7 is 10 factorial by 7 factorial and 3 factorial into this is 8x cube, and this is minus 5 to the power 7 y raised to the power 7. So we can show this is 10 into 9 into 8 into 7 factorial, obviously by 3 factorial, so into 2 into 1. Okay, 7 factorial and this 7 factorial get cancelled. So 8x cube minus just minus 5 to the power 7 y to the power 7. That's it. 3 3 is 9, 2 4 is 8. So 10 3 is 30, 4 is 120 times 8. ये माइनस लगा दो एक, minus 5 to the 7 x cube y 7, and I am not going to calculate it. It's a homework for you, just calculate it. Okay, let us take another question. Question is 5x by 4 minus 2 by 5x to the power 9. This is the expansion. The question is find the sixth term. Then we have the formula that we have discussed. Now the tr plus 1 is equals to ncr
a to the power, a means first term, n minus r, and b to the power r. This is the beautiful formula. In this case, this is your a, this is your b. B is minus 2 by 5x, and n is equals to 9. So t is 6, is simple t, 5 plus 1. So this is 9c5, 5x by 4 to the power 9 minus 5, and minus 2 by x to the power 5. Okay, so 9c5 is 9 factorial by 9 minus 5 is 5 factorial, 9 minus 5 is 4 factorial, 5 factorial then 4 factorial, and 5x by 4 by to the power 5x by 4 to the power 4, this is minus 2 by x to the power 5. Okay, so let us just calculate it. 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial by 5 factorial is 4 factorial is 4 times, 3 times, 2 times 1, it get cancels. Then 3 to the 6 and 4 to the 8. This is something of 5 to the power 4 into x to the power 4 by 4 to the power 4. This is minus 2 to the power 5 by x to the power 5. So 9 into 7, 63. 63 into 2. 63 into 2 is 126. And 5 to the power 4 is 625. 4 to the power 4 is, we can write this is 2 to the power 8. This minus 2 to the power 5 by x to the power 5. So it get cancelled with 3. So this is 2 to the power 3. Oh, here x to the power 4, that get cancelled with this term. So now we have 126 into 625 by 8x, basically with a negative sign. So इसको कैंसिल करेंगे तो 2 4 जा एंड 263, और कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई करके तो देंगे 6 माइनस 63 इंटू 625 बाय 4x, यही है आंसर। इसको जस्ट आप कैलकुलेट कर लें, ठीक। सो द बाइनोमियल एक्सपेंशन of a plus b to the power n contain how many terms? Obviously contain n plus 1 term। ओके, देखो फर्स्ट मिडिल टर्म, इसका मतलब अगर n इवन होगा तो n plus 1 इज ऑड, एंड इफ n इज ऑड देन n plus 1 इज इवन। सो सपोज यहाँ पे 4 बच्चे खड़े हैं, 1 2 3 4 ठो बच्चे खड़े हैं कि 5 ठो बच्चे खड़े हैं। तो अगर हम बताएं कि इसका नाम A है, ये B है, ये C है, D है, E है, एंड हु इज इन द मिडिल, हु इज इन द मिडिल, तो हम बोल सकते हैं कि C इज इन द मिडिल। जो C है वो सबसे बीच में वही बैठा है C, और बीच में खड़ा है वही C। अगर हम यहाँ 6 बच्चे खड़े हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6 बच्चे खड़े हैं, सपोज A B C D E F है, इसी केस में बीच में 2 लोग हैं, देयर आर 2 पर्सन इन द मिडिल, C द D टर्म, C एंड द D टर्म आर इन द मिडिल। अगर इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग इन ए क्यू और इन ए लाइन, देन which number person is in the middle? मेरे पास ये 5 है, मतलब हम 5 plus 1 by 2 कर रहे हैं, तो ये कितना हुआ 3 का, ऑब्वियसली 3। ओके, और हम 5 minus 1 by 2 plus 1 करने से यही 3 आएगा, और वही है दिस इज द मिडिल टर्म। इफ n person are standing in a line and n is a odd number, then the middle term is, which number term is in the middle term? And n plus 1 by 2 or n minus 1 by 2 plus 1 is in the middle term। Got it? ये आपका मिडिल टर्म है।
अगर 6 बच्चे खड़े हैं, इफ देयर 6 पर्सन, देन द मिडिल टर्म इज ऑब्वियसली एक n/2 नंबर टर्म और एक n/2 + 1 नंबर टर्म। देयर आर 2 टर्म्स स्टार्टिंग द मिडिल। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है आपके लिए, ये यूज होगा। देखो सो फर्स्ट फॉर n इज इवन, फॉर n इज इवन के लिए, अगर n इवन है, if n is even then obviously n plus 1 is odd. This implies n plus 1 is odd, means the number of term is odd. Okay, the number of term is simply odd. ये odd हुआ तो मतलब यहाँ कितने टर्म्स हैं, ये ऑड नंबर टर्म्स हैं। ऑड नंबर टर्म्स है तो बीच में एक ऑब्वियसली एक पर्सन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि इफ n इज इवन देन n plus 1 इज थर्ड एंड देयर इज वन टर्म इन द मिडिल ऑफ द एक्सपांशन। क्लियर? अगर n इवन हुआ तो n plus 1 ऑड है, और n plus 1 ऑड मतलब नंबर ऑफ टर्म इज ऑड, इसका मतलब बस एक ही टर्म रहेगा। इफ देयर आर n पर्सन मतलब n plus 1 ऑड है, मतलब ये चीज n ऑड है। n plus 1 ऑड है मतलब अगर n बच्चे खड़े हैं तो कितने नंबर टर्म, n plus 1/2 नंबर टर्म और n/2 plus 1 नंबर टर्म, n minus 1/2 नंबर टर्म। So the middle term is ये ऑड है ना, तो इससे +1 करके /2 कर दो, तो n plus 1 + 1/2, so n plus 2/2, और दिस इज नथिंग बट n/2 + 1 th term. So n plus 1 th term in the middle term. Okay, and now तो इसका एक्सपांशन भी निकालेंगे। So for n is equals to m, for n is even n/2 plus 1 th term is in the middle of the expansion. So this term is to find this number of term, so t n/2 plus 1 th term. So this is nothing but t n/2 plus 1 th term, means we have the formula t of r plus 1, that is NCR a to the power n minus r and b to the power r. So obviously in place of r की जगह कौन है, n/2 है कि नहीं है, r की जगह n/2 है। So t और क्या NC n/2 a to the power n minus n/2 b to the power n/2। पर n minus n/2 को थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे, सो t n/2 plus 1 is equals to nc n/2 a to the power n/2 and b to the power n/2. This is the formula for the middle term of the expansion. This is the formula for middle term of the expansion, nc n/2 a to the n/2 b to the n/2. Got it? This is for n is equals to even. और के लिए एक ऐसे थ्योरी छोटा सा for odd now. For n second case is odd. n is odd मतलब n plus 1 is even. इसका मतलब देयर आर 2 टर्म्स इन द मिडिल, देयर आर 2 टर्म्स इन द मिडिल ऑफ द एक्सपेंशन। 2 टर्म है इन द मिडिल ऑफ द एक्सपेंशन। तो फर्स्ट यही टर्म है कि n plus 1/2 th टर्म इवन है तो वही टर्म, और एक एंड n plus 1/2 plus 1 th टर्म, ये दोनों टर्म इन द मिडिल टर्म है। दोनों का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं।
फर्स्ट द फॉर्मूला इज टी n प्लस 1/2 इज नथिंग बट, इसको लिख सकते हैं +1 -1 कर देंगे, यहाँ +1 -1 +1 करने से दिस इज n/2 +1 +1 होगा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखो, यही होगा। तो बेसिकली n + 1/2 इज इक्वल्स टू n - 1/2 +1 ऐड करो, ठीक है। तो हमें r चाहिए ना, इसलिए हम यही टर्म देखो, अगर n ऑड है तो ऑब्वियसली n - 1 इवन है, और n - 1 इवन है तो इवन बाई 2 इज ऑलवेज इंटीजर होगा। सो दिस इज नथिंग बट nc n - 1/2 a to the power n minus n minus 1/2 and b to the power n minus 1/2. Okay, a to the power n minus n/2 and b to the power n minus 1/2. So इसको देखो कैलकुलेट करते हैं। So middle term is nc n minus 1/2 a to the 2n minus n minus प्लस हो जाएगा, तो n + 1/2 b to the power n minus 1/2. दिस इज द मिडिल टर्म, एक मिडिल टर्म, ये एक पार्ट है। अनदर पार्ट हम यही लिखते हैं, ठीक। यहाँ लिखते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे, नोट करो, ठीक है। नाउ सेकंड n t of n + 1/2 + 1 + 1/2 + 1 th टर्म के लिए ये r की वैल्यू अभी n + 1/2 है। सो n c n + 1/2 a to the power n minus n + 1/2 and b to the power n + 1/2. So it will be t n + 1/2 + 1 is equals to n c n + 1/2 a to the power 2n minus n is n minus 1/2 and b to the power n + 1/2. यही है आपका फॉर्मूला। For n is equals to, for n is odd number, there are two formula. This is the first formula, this is the second formula. And for n is equals to even, there is single formula, क्योंकि n अगर even है तो बस एक ही टर्म होगा इन द मिडल। अगर n ऑड है तो देयर आर टू टर्म इन द मिडल। ओके, नोट इट डाउन। Okay, let us do these two questions. The first one is, if the middle term of the expansion x/2 + 2 to the power 8 is 1120, middle term is 1120, then find x. ये expansion है, so this is, यहाँ n is even, so 8 is basically even number, so there is just one middle term, सिर्फ एक ही मिडिल टर्म है। तो यहाँ हम निकालेंगे, तो which number term is, so n/2 + 1 th term is middle term, is the middle term, so वही टर्म निकालेंगे। so n कितना है, 8 है, so 8/2 is 4 + 1 th और is equals to फिफ्थ टर्म आपका मिडिल टर्म है। दिस इज द मिडिल टर्म। Okay, so t 4 + 1 is nothing but 8c4. Okay, 8c4 x/2 to the power 4 n minus 8 minus 4 is 4 and 2 to the power 4. Simple. So 8c4 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 8 फैक्टोरियल by 4 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल x की पावर 4 सॉरी इंटू बाई 2 to the 4 इंटू 2 to the 4 2 to the 4 एंड 4 का कैंसर। सो यही वैल्यू थोड़ा सा कैलकुलेट करो, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1120. ओके, दिस इज इक्वल्स टू 1120. लेट्स जस्ट कंपेयर विद 1120 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एक को मतलब एक्सपांड करेंगे, एक को छोड़ देंगे। 4 इंटू 2 इज 8, कैंसिल है 3 2 या 6 इंटू यहाँ x 4 है,
तो कितना है 7 5 से 35 इंटू 2 70 टाइम x to the power 4 is also 1120. So x की पावर 4 is 1120 by 70, that is equal to 0 cancel, and 16 7 ja 112 16. So x 4 is 16, so is equal to simply 2 to the power 4 ना. Yes, so x is equal to 2. ये आपका आंसर है. ओके, तो मिडिल टर्म का सिंपल फॉर्मूला यूज किए और हमें आंसर मिल गया. सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 1 plus x to the 2n is equal to 1 times 3 times 5 times 2n minus 1 into 2 to the n into x to the n by n factorial. सो क्वेश्चन है आपका, एक्सपेंशन है 1 plus x to the power 2n. कितना है 1 plus x to the power 2n. ऑब्वियसली n एक इंटीजर है, सो 2n इज ऑब्वियसली ए इवन नंबर. अगर ये इवन है तो द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन इज ऑड, सो देयर इज जस्ट ओनली वन टर्म इन द मिडिल. ओके, सो वी नो दैट, सो मिडिल टर्म इज, सो मिडिल टर्म इज सिंपली जो भी नंबर है n, जनरली क्या होता है n/2 + 1 th टर्म होता है, लेकिन यहाँ n की जगह तो 2n है, सो 2n/2 + 1 th टर्म. सो ऑब्वियसली n, सो ये तो कैंसिल, n + 1 th टर्म इज द मिडिल टर्म, is the middle term. Okay, so we have to find out t of n + 1. So what would it be? It would be NCN. In place of n there is 2n, sorry, 2NCN, and 1 to the power 2n minus n and x to the power n. तो यहाँ पे देखो x to the n तो वही है, 1 की टू पावर 2n minus 1 to the anything is 1. सो इसको हमें प्रूव करना है, बस ये है सिंपल. ठीक है, सो 2NCN x to the power n. सो इसका मतलब है कि दिस इज 2n फैक्टोरियल बाय 2n minus n is n फैक्टोरियल, दिस इज x to the n. अब इस तरफ आ जाओ, इसको हम इरेज कर देते हैं. ठीक है, then 2n factorial is nothing but 2n into, okay, 2n into 2n minus 1 into 2n minus 2 होल इंटू ऐसे ऐसे 1 तक जाएगी, बाय यहाँ आपका है n फैक्टोरियल, यहाँ x to the power n है. इसको उल्टा भी हम लिख सकते हैं, मतलब 1 into 2 1 into 2 into 3 into 4 into ऐसे, ये भी 2n तक जा सकता है. 2n से पहले 2n minus 1 आएगा, इससे और पहले 2n minus 2 आएगा, दो बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल x to the 2n. अभी हम एक काम करेंगे, और नंबर और इवन नंबर को सेपरेट कर देंगे. कैसे सेपरेट करेंगे? देखो 1 into 3 into 5, तो 2n तो इवन है, तो इससे पहले और होगा अप टू 2n minus 1 तक. ठीक है, देन 2 into 4 into 6 ये अप टू 2n तक जाएगा, बाय आपका है n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और ये x to the power n है. ठीक है, सो नाउ 1 into 3 into 5 अप टू 2n minus 1 तक ये है, सही है. उसके बाद 2 को लिखते हैं 2 into 1, देन 4 को लिखते हैं 2 into 2, 6 को लिखते हैं 2 into 3, और जैसे ये n 2n को लिखते हैं 2 into n, ये x to the n बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल. हर केस में यहाँ देखो टोटल 2n टू टर्म, मतलब टोटल देयर आर 2n टर्म्स, मीन्स ये इवन टर्म n2 है और ऑड टर्म्स भी n2 है.
Okay, odd terms, even term is n2, ये even terms, there are n even terms and there are n odd term as well. So ये n to दो ऐसे मल्टीप्लाई हुआ है, व्हाट डज इट मीन? दिस इज, इस सब दो को हम एक्चुअली ये सब मल्टीप्लाई, मतलब पहले हम लिखेंगे पहले टू, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, मतलब ये वाला टू, लेफ्ट साइड वाले टू है, सब टू इंटू टू इंटू टू इंटू फॉर्म में लिख देते हैं. ओके, फिर उसके बाद देखो क्या होता है. हो गया क्वेश्चन ऑलमोस्ट. Then ये first is 1 into 3 into 5 into up to 2n minus 1. This is all right. There are n तो 2 है, so this is 2 to the n. ये सब दो को फास्ट लिख दिए हैं. Then 2 1 into 2 into 3 into up to 2n n तक है, क्योंकि इसको 2 into n लिखे ना. Into this is x to the n by n factorial n factorial. So is equals to 1 into 3 into 5 into up to 2n minus 1 to the n. This is nothing but n factorial. यहाँ दो ठो n factorial है और x to the n है, एक हो गया कैंसिल, तो आपका बच गया आंसर 1 into 3 into 5 into 2n minus 1 into 2 to the n x to the n by n factorial. यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था. ओके, let's just note it down. Then I'm going to find a new topic, the term independent of x suppose. तो कोई भी हो, मतलब a होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. So let's just take an expansion. एक एक्सपांसन मतलब x प्लस a टू द पावर n है, मतलब कंफ्यूज मत होना है, ठीक है. अगर a प्लस बी लिखा हो या x प्लस a लिखा हो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, उसकी कुछ प्रोसीजर है. ओके, तो फर्स्ट यही है, हाउ टू फाइंड द प्रोसीजर टू फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x. प्रोसीजर, सिंपल प्रोसीजर टू फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x. द फर्स्ट स्टेप इज, ओके, फर्स्ट स्टेप इज step 1, find t of r plus 1, and that is NCR x to the power n minus r and a to the power r. Okay, tr plus 1 is NCR x to the n minus r and a to the r. ये तो पता है, x to the power n minus r and सेकेंड टर्म का पावर r. हमें किसका इंडिपेंडेंट, x नहीं होना चाहिए उसी टर्म में. x नहीं होना चाहिए मतलब x की जो पावर है इट शुड बी 0. सो पुट नाउ n माइनस r इज इक्वल्स टू 0. पुट n माइनस r इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो n माइनस r इज इक्वल्स टू 0 मतलब हमें मिल गया n माइनस r की जो भी वैल्यू है, तो n की जो वैल्यू मिल गया, वॉट एवर इट मे बी. सो we got the value of r. Basically we got the value of r. We got the value of r, and so find t of that r plus 1, that is your middle term. It is your middle term. देखो हर केस में यही, इन एवरी सिचुएशन इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर एग्जिस्ट अ टर्म दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r. इन एवरी केस it does not exist. In every case it is not necessary that there is exist of the middle of the term that is independent of x. So कुछ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा. अगर हम फॉर एग्जांपल find the term which is independent of x in the term x plus 1 by x to the power 6, इसमें हम टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x यही टर्म हमें निकालना है. सो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हमारा क्वेश्चन है फाइंड
term independent of x, independent of x. So t r plus 1, तो r plus 1 th टर्म निकालो, is simple, t r plus 1 is simple 6cr x to the power 6 minus r and 1 by x to the power r. ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 6cr है x टू द पावर 6 माइनस r एंड दिस इज x टू द पावर, इसको बोल सकते हैं माइनस r. 1 बाई एक्स मतलब x टू द माइनस 1 और ये x टू द माइनस r, और 6cr x टू द पावर 6 माइनस r x टू द पावर माइनस r, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो दिस x 6 टू द पावर x टू द पावर 6 माइनस 2r, दोनों प्लस हो जाता है. तो अभी x की जो पावर कितना है 6 माइनस 2r है, अभी x की जो पावर है वो 6 माइनस 2r है. तो x कब x नहीं रहेगा एक टर्म में, सो पुट 6 माइनस 2r इज इक्वल टू 0, सो वी गॉट r इज इक्वल टू 3. तो r का वैल्यू जब 3 होगा तो उसी टर्म क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब r3 मतलब फोर्थ टर्म is independent of x, fourth term is independent of x. So we need to find the fourth term and that will be independent of x. यहाँ fourth term निकालते हैं t4, that is t3 plus 1, so 6c3 x to the power 6 minus 3 is 3 and 1 by x to the power 3, ये दोनों कैंसिल हो गए तो 6c3 की बस वैल्यू that is 6 factorial by 3 factorial into 3 factorial. तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 6 into 5 into 4 by 3 factorial means 20. तो आंसर इज आपका 20 और वो है फोर्थ टर्म दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x. Let us do this following problems. So first question is find the term independent of x in the expansion. This is the question is 3 by 2 x square minus 1 by 3x whole to the power 6, and we have to find the middle term of this expansion. So obviously find t r plus 1, let this is your middle term to find the value of r. So find r in which the term is not middle, independent of x. So obviously this is 6cr 3 by 2 x square whole to the power 6 minus r and minus 1 by 3x whole to the power r. So you are going to simplify this 6cr and this would be 3 by 2 to the power 6 minus 1, forget about it, and x square x to the power 2 times 6 minus r, and this is minus 1 by 3 to the power r, constant, no problem, and 1 by x to the power r, or simply we can say 1 by x to the power r. Okay, so this is equal to 6cr 3 by 2 to the power 6 minus r minus 1 by 3 to the power r, and x to the power, this is 12 minus 2r and this is minus r, this is minus 3r. देखो ये नीचे है तो obviously x by a by x by b होता क्या है, x by a to the a minus b होता है कि नहीं, ठीक है, ऐसे ही यही बात है. So if this term is independent of r, sorry independent of x, so if x is independent of x, then the 12 minus 3r must be 0. So 3r must be equals to 12, 3r must be equals to 12, or this implies r is equals to 4, r is equals to 4. Okay, तो r है 4. अभी हम r जब जहाँ 4 है उसी टर्म को हम निकालेंगे. So we have to find if r is equals to 4, it will be fifth term. So t5 निकालेंगे, t5 मतलब t4 plus 1, तो 6c4 है. ओके 6c4 है
और 3/2 एक्स स्क्वायर की जो पावर है 6 माइनस 4 दैट इज 2 है, एंड -1/3x की जो पावर है वो दैट इज 4 है। तो 64 इज नथिंग बट 15 आई गेस 15। इसका स्क्वायर करूँगा 9/4 एक्स टू द पावर 4, और ये -1 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको 81 है, 9 जा 81, फिर 3 जा 9, 3 5 जा 15। सो ये तो कैंसिल हो चुका है एक्स पर पूरा। तो बचा कितना, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 4, ये तो 1, तो 5/4, तो यहाँ 3 भी है। सो 5/12 इज योर आंसर। चेक कर लो, यहाँ बचा है 15, सही है। एक 3 स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 है, ये 81 है, तो एक 9 कैंसिल, 3 से वही कैंसिल, ठीक, दैट्स योर आंसर। नाउ अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपांशन 1/2 minus 10x plus 6x square whole into 1/x minus x to the power 10। यहाँ 1/2 minus 10x plus 6x square whole into 1/x minus x to the power 10। इस टर्म के हम इंडिपेंडेंट टर्म निकालेंगे, द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ओके, सो यहाँ भी हमें वही r वाला टर्म निकालना है। लेट द फाइंड द वैल्यू ऑफ r, टू फाइंड टी आर प्लस 1। लेकिन यहाँ वेरिएबल r का वैल्यू वेरिएबल थोड़ा वेरिएबल होगा, क्योंकि यहाँ दे रहा 3 ठो टर्म है जो इससे मल्टीप्लाई होने वाले हैं। इनमें से बस ये बाइनोमियल टर्म यही है, इसका एक्सपेंशन हम निकाल सकते हैं। ये तो कुछ बाइनोमियल है ही नहीं, सिंपल एक पॉलिनोमियल है। सो इसके लिए तो इसी टर्म का r+1 के लिए क्या होगा, तो इस टर्म में थोड़ा लिखेंगे 1/2 minus 10x plus 6x square into this 10cr, okay, 10cr 1/x to the power r and minus x to the 10 minus r and minus x to the power r, यही है, and minus x to the power r। ओके, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा पूरा सबसे, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 10cr, 1/2 इंटू 10cr, ये x की पावर, दिस इज x टू द पावर r माइनस 10। ऑब्वियसली सोचो थोड़ा, अगर 1/x की पावर 5 हो तो x की पावर -5 होता है, तो इसलिए इसके नेगेटिव कर देंगे, तो ये r माइनस 10 है, एंड दिस इज नथिंग बट -1 टू द r, और ये x टू द पावर r ही है। ओके, होल ये पूरा सबसे मल्टीप्लाई हुआ है, इतना ही दिखाओ अभी, इंटू 1/2 minus 10x plus 6x square, 1/2 minus 10x plus 6x square, then is equals to, कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10cr -1 टू द, और इसको -1 टू द पावर r, जितना भी है इसको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और x की पावर कितना है, r माइनस 10, और वहाँ x की पावर r है, तो ऑब्वियसली x की जो पावर है 2r माइनस 10 हो गया, और जो टर्म के साथ मल्टीप्लाई 1/2 minus 10x plus 6x square, तो 10cr -1 r को लिखो बाहर, तो फर्स्ट टर्म 1/2 इंटू एक्स की पावर 2r माइनस 10, सेकेंड में -10 इंटू एक्स की पावर 2r माइनस 10 इंटू एक्स
देन +6 इंटू एक्स की पावर 2r माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर। तो फाइनली कितना हो गया 10cr माइनस 1 टू द पावर r हाफ इंटू एक्स टू द पावर 2r माइनस 10 इंटू ये है +1, अगर यहाँ करोगे तो 2r माइनस 9 हो गया, और यहाँ हम करेंगे तो 6 इंटू एक्स टू द पावर 2r माइनस 8 हो गया। तो ये देर आर देखो हमें x की पावर 3 तो वेराइटी में मिला, फर्स्ट केस में यही पावर, सेकंड केस में यही पावर, ओके हर वेराइटी में मिला। तो r की हम जो वैल्यू है वो 3 तो वैल्यू निकलेगा। फर्स्ट इन द फर्स्ट केस द वैल्यूज ऑफ r वैल्यूज ऑफ r फर्स्ट केस में 2r माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 होगा तो r इज इक्वल्स टू 5। सेकेंड केस में 2r माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 होगा तो r इज इक्वल्स टू 9/2। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि नॉट पॉसिबल है, क्योंकि r की वैल्यू तो इंटीजर चाहिए। थर्ड केस में 2r माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 होगा तो r इसका वैल्यू जो 4 है। तो r का वैल्यू एक 4 है और एक 5 है, और डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। देखो कैसे करें। देखो जब 2r माइनस 10 कब जनरेट होगा, जब हाफ मल्टीप्लाई होगा उसी समय r का वैल्यू 5 है, प्लस ये टर्म तो कुछ भी नहीं है, और जब 6 मल्टीप्लाई होगा उसी समय r की जो वैल्यू है 4 है। ओके उसी समय r की जो वैल्यू है वो 4 है। तो जो इंडिपेंडेंट टर्म बन जाएगा आपका, इंडिपेंडेंट टर्म यहाँ एक में हम 5 पुट करेंगे और एक में 4 पुट करेंगे। एक में r की जो वैल्यू है वो 5 पुट करेंगे और एक में जो r की जो वैल्यू है वो 5 पुट करेंगे। देखो सो इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x इज, ओके फर्स्ट में पुट करो सब मल्टीप्लाई करने के बाद, एक में r में एक मल्टीप्लाई करो 5 वाला केस में। ऐसे सब मल्टीप्लाई होने से बेटर है 10cr माइनस 1 टू द r 1/2 x टू द 2r माइनस 10 प्लस 10cr, सेकेंड में माइनस है कि प्लस है, माइनस है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, माइनस 1 टू द r। ये सेकेंड टर्म कौन सा है, यही है ना, हाँ अगेन 10 इंटू एक्स टू द पावर 2r माइनस 10 प्लस 10cr 6 इंटू एक्स टू द पावर 2r माइनस 8। तो इसी फर्स्ट टर्म में हम r की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे 5 एंड लास्ट टर्म में वैल्यू पुट करेंगे 5, और इस टर्म ये हो जाएगा एलिमिनेट। ओके सो इन 10c5 माइनस करना तो 5 1/2 एक्स टू द पावर 10 माइनस 10 हो गया गायब, प्लस सेकेंड टर्म कुछ नहीं है, और थर्ड 10c4 6 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 4 ये भी हो गया गायब, और एक माइनस 1 टू द पावर यहाँ कितना है 4 है। सो 10c5 की वैल्यू माइनस 10c5 इंटू हाफ प्लस यही है 6 इंटू 10c4, इसकी जो वैल्यू सिर्फ निकालना है। इसमें जो है इसकी वैल्यू निकालना है, देखो 10c5 तो माइनस 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल प्लस 6 इंटू 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और 4 टू 10c5 की जो वैल्यू है इसको 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, एक 5 को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 छोड़ो, ये कैंसिल हो गया, और एक पार्ट है 6 इंटू 10 फैक्टोरियल को लिखो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, बाय 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 फैक्टोरियल, 4 को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 छोड़ो,
ठीक है, समझ में आया आपको? देन 6 फैक्टर 6 फैक्टर कैंसिल, और कैंसिल होगा 5 और 2 मिलके हुआ 10, 4 में ये गया 2, 3 में ये गया 2, ठीक है, और ये 2 और एक 2 को भी कैंसिल कर दो, तो यहाँ बचा 9, 7 और 2, तो 9 इंटू 7 63, 63 इंटू 2 इज 112 माइनस 112 प्लस 3 इंटू 6 6 है, 4 गया एक 8 से 2, सो दिस इज 90 इंटू 7 630, 90 इंटू 7 is 630, 630 इंटू 2 is, so this 63 126 है, दिस इज 1260 है, तो कैंसिल होने से 4, देन आपका 5 से 2 जाएगा तो ये 3 है, और 12 से 1 जाएगा तो 11, 1134 आपका आंसर है। हाँ, पॉजिटिव इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। देखो इसको थोड़ा सा और ब्रीफली समझाएंगे। करना क्या है आपको, हाफ इंटू, लेट्स समझाइए, ओके, सो हाफ इंटू 1 बाई एक्स माइनस एक्स टू द पावर 10 माइनस 10x इंटू 1 बाई एक्स माइनस एक्स टू द पावर 10 और 6x स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स माइनस एक्स टू द पावर 10। ओके, यहाँ आप इंडिपेंडेंट टर्म निकालेंगे, यहाँ इंडिपेंडेंट टर्म निकालेंगे और यहाँ भी इंडिपेंडेंट टर्म निकालेंगे और तीनों इंडिपेंडेंट टर्म को ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ इंडिपेंडेंट टर्म निकालो, यहाँ भी इंडिपेंडेंट टर्म निकालो, यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इस केस में हमें r का जो वैल्यू 5 मिला और इस केस में r की जो वैल्यू है 4 मिला। r की वैल्यू 5 और 4 दोनों मिलके हो गए, मतलब इसलिए एक केस में r की जो वैल्यू है वो 5 पुट की और एक केस में 4 पुट की। ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x4 इन द एक्सपेंशन ये। ओके, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x होल टू द पावर 9। So you have to find the coefficient of x4. This is h same as the to find the independent term. थोड़ा सा यहाँ x is equals to 0 कंपेयर कर देंगे, x की जो पावर है यहाँ बस 4 के साथ हम कंपेयर करेंगे। So this is nothing but 1 into 3/2 x square minus 1/3x whole to the power 9 plus x into 3/2 x square minus 1/3x whole to the 9 plus x square whole into 3/2 x square माइनस 1/3x होल टू द पावर 9। ओके, लास्ट क्वेश्चन में भी तुम ऐसे ठीक इसी तरह कर सकते हो। सो यहाँ क्या करेंगे, हर केस में इन ईच द 3 केसेस वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x4 एंड लास्ट में तीनों को ऐड कर देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x4 निकालेंगे, देन वी आर गोइंग टू ऐड देम। ओके, सो इन द फर्स्ट केसेस कोएफिशिएंट of x4 in 1 into 3/2, first 3/2 x square minus 1/3x whole to the 9। ये tr को लिख देते हैं, tr plus 1 को लिख देते हैं, हर केस में काम आएगा। देखो tr plus 1 is obviously 9cr 3/2 x square to the power 9 minus r minus 1/3x whole to the power r, so 9cr और कोफिशिएंट नॉर्मल है 3/2 to the power 9 minus r minus 1/3 to the power r, और यहाँ x की जो कोफिशिएंट है वो 18 minus 2r है, यहाँ माइनस r है, तो x की जो कोफिशिएंट है वो 18 minus 2r और यहाँ माइनस r, मतलब टोटल हो गया 18 minus 3r। I hope you got it.
Okay, in the first case ये tr plus 1. So now what is the coefficient of x4? हम यहाँ निकालेंगे. अगर coefficient of x4 in फर्स्ट इसको पहले लिख देना 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स टू द पावर 9 एक्स 1 इंटू. तो ये सिंपल x की जो वैल्यू है r पुट करेंगे. पुट 18 माइनस 3r इज इक्वल्स टू 4. ओके, 18 माइनस 3r इज इक्वल्स टू 4. So it will be 3r is equals to 18 minus 4, that is 14 by 3. Sorry, 14. So r is equals to 14 by 3. So इसी फर्स्ट टर्म में x to the power 4 does not exist. So x to the power 4 is simply not exist. हम दूसरे टर्म में जाएंगे. ATR प्लस हम हर केस में हम यूज कर सकते हैं. Now coefficient of x4 in x into 3/2 x square minus 1/3x. ओके, इसी टर्म में. सो दिस इज नथिंग बट यहाँ x की पावर 1 है एंड इसी केस में टी आर प्लस 1 कितना है, वही 9CR 3/2 टू द पावर 9 माइनस आर माइनस 1/3 टू द पावर r और r टू द पावर है आपका 18 माइनस 3 है. यहाँ 1 है. सो इस 1 को ऐड करेंगे तो 9CR 3/2 टू द पावर 9 माइनस r माइनस 1/3 टू द पावर r. सो r टू द पावर 19 माइनस 3r. तो यहाँ भी 19 माइनस 3r को तो अगर हम 4 पुट करेंगे तो r की जो वैल्यू होगा 19 माइनस 4 इज 15 बाई 3 दैट विल बी 5. तो सेकेंड टर्म में r की जो वैल्यू है 5 है. अगर हम 5 पुट करेंगे यहाँ, सो कोफिशिएंट ऑफ x4 इज जरा यहाँ पुट कर सकते हैं 9C5 कितना मिला, 5 मिला. 9C5 3/2 टू द पावर 9 माइनस 5 9 माइनस 5 और माइनस 1/3 टू द पावर 5 और r की जो पावर 19 माइनस 15 दैट विल बी 4 ऑब्वियसली. सो 9C5 वुड बी, इसको कैलकुलेट करना. ठीक है, 9C5 मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता. 3/2 टू द पावर 4 एंड माइनस पहले से लिख दो 1/3 टू द पावर 5. थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हो तो इट विल बी, ये 3 4 है, ये 3 5 है, तो कैंसिल हो जाएगा एक पार्ट. 9C5 1/2 टू द पावर 4 इंटू 3. यही है आपका कोफिशिएंट ऑफ x4 इन द मिडिल टर्म. ओके, और फर्स्ट केस में 0 है. फर्स्ट केस में यहाँ नॉट एक्जिस्ट मतलब 0. सो कोफिशिएंट इज सिंपली 0 इन द फर्स्ट केस. ओके, अभी आते हैं थर्ड केस पे. ओके, नाउ कम टू द थर्ड केसेस. दिस फॉलोइंग केस में सो इसकी TR+1 तो चाहिए थी. ये हमें पहले से इसको थोड़ा सा मिला देते हैं, एक स्टेप नहीं कर देते. ओके, ये तो लास्ट वाला टर्म है x2 इंटू, ये तो पता है हमें. ठीक है, एक्स स्क्वायर. सो कोफिशिएंट ऑफ x4 इन एक्स स्क्वायर इंटू दिस 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स टू द पावर 9 विल बी x टू द 2 है. ये मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना है 9CR 3/2 टू द पावर 9 माइनस r माइनस 1/3 टू द पावर r और x टू द पावर 18 माइनस 3r. तो ये 2 ऐड होगा तो 9CR देन 3/2 टू द पावर 9 माइनस 1 माइनस 1/3 टू द पावर r और x टू द पावर 2 ऐड हो रहा है
तो 20 - 3r, और इसके कोई काम नहीं, 20 - 3r। सो 20 - 3r को अगर हम 4 पुट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x के लिए, सो जो r की वैल्यू है वो है 16/3। ये भी नॉट पॉसिबल है, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो द कोफिशिएंट ऑफ x4 इज 0, कोफिशिएंट ऑफ x4 इज 0 इन थर्ड केस। सो एक बस देखो, बस एक ही एक्सपेंशन में ये दिस इंटू 1 करोगे तो x4 का टर्म नहीं मिलेगा, x इंटू ये टर्म करोगे तो x4 के टर्म एक मिलेगा, और x2 इंटू ये टर्म करोगे फिर भी नहीं मिलेगा। तो टोटल x4 का टर्म कितना है सर? कोफिशिएंट ऑफ x4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x4 इज सिंपली, x4 का कोफिशिएंट कितना है? एक 0 - 9c5 1/2⁴ इंटू 3 और प्लस अगेन 0। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कर देंगे 9 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 9 को डायरेक्ट हम लिखते हैं 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1। ये 2⁴ नीचे है और इंटू 3 है, 2⁴ मतलब 16 डायरेक्ट मतलब, ठीक है। सो 5 फैक्टोरियल कैंसिल, माइनस साइन भी है एक, और 3 × 2 6 है, इसको काट दो, 4 × 2 8 है, तो ये 9 × 7 63 × 2 126, तो -126/48 कैंसिल होगा, तो वो ठीक है। कर दो 2 से तो 63/24, फिर 3 से होगा शायद, तो 3 से होने से 6 से होगा नहीं, 3 से ही होगा, तो -21 -21 बाय कितना, ये 3 से 6, 3 से ना 8 यही आंसर है आपका। Okay, note it down. Next question: the coefficient of 3 consecutive terms in the expansion of 1 plus x to the power n are in the ratio 1:7:42. Then find n. So, to have a closer look on the 1 plus x to the power n, the general term are in the ratio अगर tr plus 1 निकालेंगे, it will be ncr, and 1 to the power anything is anything, and x to the power r. So the coefficient is basically NCR. So the coefficient is basically NCR. Okay. So let there are 3 terms: R th term, R plus 1 th term, and R plus 2 th term are 3 consecutive term. Then their coefficients are, then their coefficient are, इस केस में r की जो वैल्यू है एक कम होगा, मतलब NCR -1 और NCR and NCR plus 1. These are the coefficient of rth term is, मतलब r plus 1 th term का coefficient यही है, मतलब rth term का NCR -1, r plus 1 th term का NCR और r plus 2 th term का NCR plus 1. तो दिस इज हमें गिवन देंगे NCR -1 is to NCR plus 1 is simply 1:7:42. So now we need to find out the value of n. Okay, now we need to find out the value of n. Simply first step हमारा NCR by NCR -1 करो, that is equal to 7/1 is simply 7. तो NCR कितना होगा, n फैक्टोरियल बाय यहाँ से बाय लिख दो r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, और NCR -1 कितना होगा, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r -1 कितना, n plus 1 माइनस r फैक्टोरियल और एक r -1 फैक्टोरियल। इसको और थोड़ा सा देखेंगे, दिस विल बी n फैक्टोरियल, ये पूरा नीचे है ऊपर जाएगा तो दिस विल बी n plus 1 माइनस r फैक्टोरियल
एंड आर माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस इज, ये तो 7 है और ये नीचे आ जाएगा तो आर एन फैक्टोरियल तो है पहले से, और आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल गेट कैंसिल, या एन प्लस 1 माइनस आर है या एन माइनस आर, दोनों फैक्टोरियल है, मतलब ऑब्वियसली देखो एन प्लस 1 फैक्टोरियल बाई एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू हमेशा एन होता है, ठीक है। अगर एक नंबर ज़्यादा हो तो वही एन हो जाता है, तो इसी केस में भी ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ एंड दिस विल कैंसिल विद दिस, सो एन प्लस 1 माइनस आर बाई आर इज इक्वल टू 7, सो एन प्लस 1 माइनस आर इज इक्वल टू 7r, सो सिंपली n प्लस 1 माइनस इज इक्वल्स टू 8r, ये आपका एक इक्वेशन है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, अभी हम करेंगे एन सी आर प्लस 1 बाय एन सी आर, ये है 42/7 दैट इज इक्वल टू 6i। इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, ऊपर में n फैक्टोरियल रहेगा और बाय इसके नीचे रहेगा आपका n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल और r प्लस 1 फैक्टोरियल, ओके। इसका फर्स्ट इसमें ऊपर जो रहेगा यहाँ लिख दो n फैक्टोरियल और इसके नीचे वाला टर्म ऊपर लिखेंगे, मतलब n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 है, तो n फैक्टोरियल गेट कैंसिल, या n माइनस आर है या n माइनस आर माइनस 1 है, तो इन दोनों में से छोटी टर्म कौन है, ऑब्वियसली n माइनस आर माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और r फैक्टोरियल कैंसिल विथ r प्लस 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे सिंपल हमें टर्म मिला n माइनस आर इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स r प्लस 1, 6 times r plus 1, so n minus r would be 6r plus 6, 6r plus 6, so n minus 6 would be 7r, तो यहाँ 7r की डिफरेंट है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ओके। सो दिस इज आवर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, लेट देम सॉल्व। ध्यान रखते हम इक्वेशन 1 से अगर इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर देते तो n लिख देते हैं, n प्लस 1 इज इक्वल टू 8r है और यहाँ n माइनस 6 इज इक्वल टू 7r है। सो माइनस करेंगे तो ये माइनस साइन चेंज होगा, n माइनस n इज ऑब्वियसली 0, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 1 + 6 7 एंड दिस इज इक्वल टू 8r माइनस 7r इज r, तो r की जो वैल्यू है 7 मिल गया, r की वैल्यू मिल गया, r का वैल्यू पुट कर दो कहीं पे भी, यहीं पे पुट कर देते हैं, सो हमें दिया है कि यहीं पे पुट, कहाँ से भी पुट करो, तो n माइनस 6 इज इक्वल टू दिया है 7r, सो n माइनस 6 इज इक्वल्स टू दिया है 7 इंटू 7 इज 49, सो n इज इक्वल्स टू 49 प्लस 6 इज 55 एंड दैट इज द आंसर, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, आज के लिए इतना ही, यहाँ पे तो आपका बाइनोमियल थ्योरम ही खत्म होता है, ओके। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। कुछ क्वेश्चन हम कर दिए हैं एंड जो मटेरियल में आपका जितने भी क्वेश्चन है दिस इज ए होमवर्क, आपका यही होमवर्क है कि प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन ऑफ स्टडी मटेरियल, ओके। स्टडी मटेरियल में जितने सारे क्वेश्चन हो सब आपके लिए होमवर्क है, अगर कोई भी डाउट हुआ, कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ, then you can ask me by call or by WhatsApp, okay। So that's it, bye bye, take care, see you in the next class.